we have with us Harinder ji, 97 batch IRS, presently Additional Director General Income Tax in Bhopal. He was our student in Chandigarh, and Chandigarh we had a very interesting story. It was my hometown, you know it. And we had no intention to start an institute there. Sagarpreet, अगर आपने नाम सुना हो, इस वक्त एडिशनल कमिश्नर है यहाँ पे. He approached me. He had submitted his PhD in sociology. He said, sir, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है एकेडमिक्स में जाने का, मैं जुड़ना चाहता हूँ. I said, okay. We start at Chandigarh and he had done it from there only. ठीक है, you become the in charge. But one thing is there, because you know nothing about UPSC, you attend all the classes. And he attended. क्लासेस अटेंड करने के बाद क्या था, मेरे को तो IAS देना है. हमने कहा भी दे दो, वो IPS बन गया. Then what to do? Then Harinder ji took up. He also became, and then we closed down. Another problem was that classes was not a problem. Problem was my home. If I go there and they know about कि मैं आया था, they would literally start fighting with me. कि चंडीगढ़ आते हो, घर नहीं आ सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? Means another day. And by chance he was here yesterday. His son is there in Thapar University हो गया ना तो in Patiala, very near to my home. My childhood dreams are there, and she'll be online or offline, what is the case. But till date, since that time, he remembers so much of anthropology. It's really amazing. So you can benefit from him, not only in terms of anthropology, but as a whole interview, as a whole about civil services, as everything you can say. I just had 15 minutes interaction with him, and changed a lot in terms of physique, but very lovable person. ठीक है? Good afternoon, everybody. So all of you basically are for anthro here, na? Okay. You see, first thing I will, from my experience only, I am going to tell you. You see, when I was appearing for civils, since I was there in Chandigarh, so I asked sir, I was planning to, opt for sociology. In fact, I opted for sociology. But sir then told me that I will give you some input, why don't you take anthropology? And of course, on sir's advice, I took anthropology. Result was that I didn't have much time. You can say when I decided, it was maybe just around when we fill the form for mains then. Now so you have to tell in the preliminary filling only what option you're going to take. In our time, we had to decide before filing your mains form. So just when we are filling for that, before that only, you can say 15 days before that only I decided. So net you can say okay, I would have only 1.5 months for anthropology. Of course, some background was there with the sociology, but sociology also I didn't study much. I had only some booklets which I have went through. But I always had interaction with sir, and sir teachers, and especially sir, and we had a wonderful teacher, Dr. Vinay Srivastava, Nadeem Hussain sir. So because of that, at least what I will say, and I tell also now also, okay, whenever you opt for any optional, kindly try to live with that optional. Try to visualize that you are part of that. When you are studying anthropology, try to visualize, okay, you're talking of some maybe tribal or some I'll say simple societies. People say primitive, but I want to name it primitive. It is not primitive basically. In many things they are quite advanced for us basically, right? That is a really, already you must be studying an anthrocentric approach when we say something like that. So there are so many things which learn from them also. There is no doubt about it. So no cultural is inferior or superior. You have to see all culture in their own context. If they are practicing something, it is relevant to their own culture, their own history. So nothing bad and nothing is good or bad about that. It is their cultural context, practice, and they're doing that. So when you are opting for anthropology, my suggestion is that only first you live with anthropology. Try to visualize, okay, you're part of that tribal group.
कि these are the issues. For example, you must have Trobrand, this one economic exchange Kula. You try to imagine that you are living with uncertainty. You are living with, you know, a lot of this one, that you don't know what is going to happen in future. And you don't know what are your resources limited. And resources are not in, you know, today we visualize infinite, but they're not infinite. Because our technology has made it so that we feel that they are infinite, they're not going to finish. And that's why everybody is blindly consuming those resources. And but they visualize this, they understand this, that these resources, they are limited. That's why I always say that whenever you want to know the conservation, then learn from those people. That how efficiently they, you know, exploit their resources. When we talk about this two school of this one, substantives and this one, this is one of the, this one, they say that all economic laws can be applied to the simple societies. No, it's not like that. Even if I just tell you, like I am from Punjab, even 40, 50 years back, and today if we see, there is a drastic change in attitude of people. When I used to be a small kid, our, you know, like my grandfather or my grandmother, they used to say, कि बेटा ये जूठा नहीं छोड़ने का कभी भी. और कई बार तो हमें पनिश किया जाता था कि अभी अगर आज आपने जूठा छोड़ा ना, आज आपको 2 रोटी मिलेगी, कल 1 मिलेगी. अभी ऐसा नहीं है. अभी तो हमारे पास क्या आ गया, वो बुफे सिस्टम. बुफे सिस्टम क्या होता है? मैक्सिमम वेस्टेज. दिस इज व्हाट हैपनिंग. तो 40 साल में मैं बात कर रहा हूँ पंजाब वालों की, लेकिन पंजाब में अभी भी उनका अभी जो है गाँव में एटीट्यूड वैसी हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो लैंड है इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, लोगों की मोस्टली लैंड जो है बनाई उसमें बिकॉज किसी में एक्वायर होगी, कुछ होगी, तो दे हैव गॉट लॉट ऑफ मनी. मतलब कि एवरेज 1 acre लैंड इन पंजाब which is away from the main road or just on the link road only, it is not less than 1 crore rupees per acre. In fact, that is one of the main, you know, obstacle in the industrialization of Punjab. Because some of my friends, they have gone to UP for investment. In UP they say, okay, for on main road, 5 to 6 lakh rupees per acre they are getting. In Punjab, on main road, not less than 3 crore rupees per acre. So they say, where is investment viable here? We will put some industry here. We want to, you know, acquire 10 acre of land. We are not going to survive over here. That's why they're going to other states. MP they're going. MP same thing, 5-6 lakh rupees on main road you're getting per acre. So what I'm saying is, this is the how these societies, they give us a lot. They tell us a lot. They make us learn a lot. So whenever you study anthropology, these are certain basic things. Try to live with that subject. Anthropology is very, rather I will say, so comprehensive. What do you say, holistic, na? Holistic, what you are studying, saying holistic. I say not is only holistic with respect to, you know, anthropological, this one, okay, human. I will say it is holistic for everything. Life, in the whole globe, I will say anthropology is holistic. You can study anything under the scope of anthropology, which is not the case of any subject. You tell me, you name anything, I will say that it is a part of the anthropology. So it has advantage also, disadvantage also. The advantage ये है कि आप हर चीज़ पे कुछ ना कुछ जो है एक एनालिटिकल तरीके से कुछ ना कुछ लिख सकते हो. डिसएडवांटेज ये है कि फील्ड बहुत वास्ट हो जाता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है. यहाँ पे ऑप्शनल तरीकों को जब डील कर रहे हैं आपने, तो नेचुरली आपको कुछ ना कुछ जो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, थ्योरेटिकल टूल्स हैं आपके, वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे. यू सी, मुझे यस्टरडे आई हैड सम डिस्कशन विद अंतम. ही वाज टेलिंग मी कि पेपर 2 में लोगों को बहुत नंबर कम आ रहे हैं. तो मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने एंथ्रो ली, उनके पेपर 2 में नंबर अभी रिसेंट 2-3 सालों में अच्छे नंबर नहीं आए. तो उनको मैं 2 साल पहले अपेयर होने से पहले जानता हूँ. तो मैंने बोला बेटा पेपर 2 में थोड़ा अच्छा सा कर लेना, ये डैसी होता है. बोला सो अंकल नहीं, पेपर 2 तो कोई बात ही नहीं है, तो बड़ा जनरल होता है जी, कुछ नहीं है. ट्राइबल प्रॉब्लम्स हैं, ये है जी, लैंड लाइनेशन है, ये है इंडटनेस है, ये है, कुछ नहीं है. तो नंबर नहीं आए. जबकि उनका ये था, जब उनको पेपर हुआ तो जैसे कि पेपर 2 तो बहुत अच्छा हो गया, पेपर 1 ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ. जब नंबर आए तो उल्टा हुआ, पेपर 1 में नंबर अच्छा आए, पेपर 2 में नंबर नहीं आए. सो रीजन क्या है कि देखो, आप अगर पेपर 2 को जनरल स्टडी की तरह से जवाब दोगे वहाँ पे, तो फिर नंबर नहीं आएंगे आपके. आपकी जो भी इशू है ट्राइबल्स का, सोसाइटी का, स्टूल कास्ट का है या बैकवर्ड क्लासेस का है, जो भी इशू है, कोई ना कोई उसका एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है.
उसको ध्यान में देख रख कर के ही आपको जो है उसका जवाब देने का है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ, मैं उस स्टूडेंट को जानता हूँ, उसको एक क्वेश्चन आया था अभी, वो जो है ये आपका जो है व्हाट यू कॉल दैट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है इम्पैक्ट क्या हुआ ट्राइबल्स के ऊपर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वो उसने बहुत कुछ बोला। आई डोंट से कि वो जो उसने बोला वो ठीक नहीं था, ठीक था, पर वो जनरल था। तो ये क्वेश्चन जो मैं प्रिपेयर हुआ था 96 में, तब हमारे पास भी आया था क्वेश्चन। और मैं फ्रैंकली बता दूं, मुझे पेपर 2 कुछ नहीं आता था। सर के कुछ फंडे सुने हुए थे, कुछ थ्योरी जो पेपर मैंने पढ़ी थी वो पेपर 2 में मैं अप्लाई कर गया। मैं फट्टे मार के आया था पेपर 2 में, आई घंटे, और पेपर 2 में बहुत अच्छा नंबर आए थे मेरे। रीजन क्या था कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मैं कैसे लिख के आया था, ये ट्रैवल का जो है कि लेट्स से अर्बनाइजेशन या डिफॉरेस्टेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो मैंने पूरा विजुलाइज किया कि भाई जो अब जंगल में रह रहे हो तो क्या क्या आप वो करते होगे। जंगल में रह रहा हूँ तो मेरा जो है पूरे जो मेरी सोसाइटी, मेरा सोशल है, मेरा इकोनॉमिक इशू है, हर चीज़ जो मेरी जंगल के साथ एम्बेडेड है। मैंने खाना पीना है, पत्ते वहाँ से खाने हैं, वहाँ से मैंने हर्ब्स अपने वो करने में, दवाइयाँ वहाँ से आएंगी, मेरा फूल वहाँ से आएगा, मेरे कैटल हैं तो उनके लिए मैं फॉडर वहाँ से लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना जी। फिर हमने क्या, अपने को ना कोई पेड़ को एक टोटम बना रखा है। क्यों? हम सोचते हैं कि जंगलों में मेरे इंसेस्टर रह रहे हैं, उनकी आत्माएं यहाँ घूम रही हैं। तो आपका इतना सोशल कल्चर उससे ज़्यादा इतनी मूरिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर आप वहाँ से किसी को उठा करके कहीं रख दोगे तो या आप देखिए, आप लोग तो अभी मॉडर्न हैं, आप में से भी आई एम डैम श्योर कि 90% लोग अभी भी ये हम अभी श्राद्ध करते हैं यहाँ पे। सबको पता है कि श्राद्ध का मतलब क्या होता है। हम लोगों को भोजन देते हैं सोच के ये कि हमारे जो इंसेस्टर उनको जाएगा ये आपका विश्वास है। जब आप इतने मॉडर्न हैं, इतनी एजुकेशन आपकी हो चुकी है, वेस्टर्न एजुकेशन हो चुकी है, उनका इमेजिन कीजिए बेचारे जो सदियों से वहाँ रह रहे हैं, किसी के साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। वो क्या सोचते होंगे कि यार हमारे इंसेस्टर यहाँ रहते थे जंगलों में, हमें यहाँ से उखाड़ के यहाँ डाल दिया। अब देखिए कि कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी, कितना उनका सोशो इकोनॉमिक डिसरप्शन होगा। तो मैं वही चीज़ को रखे किया कि अगर आप वहाँ किसी को वहाँ उनको कहीं और रिहेबिलिटेट कर भी देते हो, उसका कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट स्किल्ड। शहर के पास में आपने उसको अच्छे मकान बना के दे दिए, शहर में क्या करेगा, वो लेबर बनेगा ना, उसका स्किल ही नहीं है, मशीन चलाना स्किल नहीं है उसका। वो एकांत में रहता है, मशीन चलाएगा, उसको शोर से उसके कान ही वो करेंगे, ही विल फील सो अनकंफर्टेबल। सो ये चीज़ें मैं फट्टे मार के आया था वहाँ पे। फिर एक क्वेश्चन आया था कि डिस्कस दी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ दिस वन चिल्ड्रन अमंग ट्राइबल्स। ये क्वेश्चन भी आया था, मुझे कुछ नहीं आता था। तो मैंने क्या किया कि मैं सोचा कि हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल बच्चे हैं सोसाइटी में, उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं। हमने कहा यार उनकी वो भी क्वासी ऑर्कर भी है, मरासम्स की प्रॉब्लम भी है, अनीमिया में की भी है, सारे वो वैक्सीनेशन नहीं हो पाती, उनको ये बीमारियाँ हैं, वो बीमारियाँ हैं, अंडरवेट हैं, स्टंटेड हैं, तो ये उन पर भी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने वहाँ अप्लाई करके लिख दिया। सो ये तभी हो पाया कि मेरा पर्सपेक्टिव वाइड था, मैंने सोर्सेज वाइड पढ़ रखे थे। जैसे कि वैद के एंथ्रोमी ये कि यही अप्रोच रही है शुरू से। आपको जो है ना, आई वाज सेइंग मतलब डिस्कसिंग सर कि सर आजकल जो स्पून फीडिंग का बहुत जमाना चल गया, मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत लोगों ने डाले स्पून फीडिंग है कि जी ये बना दिया, यही पॉइंट लिखने हैं। नहीं, ऐसा नहीं भाई, आपको एक पर्सपेक्टिव दे दिया है, आप अपने तरीके से समझ कर लिखो उसको। जो बोलते हैं ना कि यही लिख के आना है, नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज राइट अप्रोच। आपको एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव दे दिया इस चीज का कि ये डायमेंशन है इस इशू का, समझा दिया आपको। उसको आपने किसी भी जो है सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, चाहे वो ट्राइबल प्रॉब्लम है, क्या किसी और कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, उसको कैसे अप्लाई करना है, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आप कर पाएंगे तो पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और एंथ्रो का मैं बताता हूँ आपको, हमारे पास आई वाज टेलिंग सर, वी हैड वन ऐसे, आपने भी सुना होगा ऐसे का जो टॉपिक में लिख के आया था ऐसे का। उस टाइम हमारे टाइम में जो 300 उसका नंबर का ऐसे आता था, 200 नंबर का ऐसे आता था, उसके जो है एक ही ऐसे होता था और उसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं थी। जैसे आजकल 1000 वर्ड होता है ना, उस टाइम कोई वर्ड लिमिट नहीं थी। तो आम धारणा ये थी कि 12-18 पेज जान मत लिखो तो नंबर कम आएंगे। लेकिन मैं खुद सोचता था इंडिपेंडेंटली कि नहीं भी, अगर आपके पास कंटेंट है जितना मर्जी पे लिखिए आप। तो मैं जो ऐसे लिख के आया था वो था कंपोजल कल्चर ऑफ इंडिया। अभी उसमें देखिए कैसे मैंने अपना उसको जो भी है वहाँ बैठ के पहले, बिकॉज उसमें 3 घंटे मिलते थे लिखने के लिए, तो उसमें आधा घंटा हम सोचते थे, स्ट्रक्चर करते थे हमने ऐसे को
कि कैसे क्या क्या होना चाहिए। तो फिर मैंने वो स्ट्रक्चर किया पूरा ऐसे। तो देन आई ऑल टुडे ऑल्सो आई इनफैक्ट आई रोट दैट ऐसे इन 42 पेजेस, और पूरे 42 पेज में एक भी कटिंग नहीं थी। और हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, जैसे टाइप किया होता है ऐसे ऐसे हैंड राइटिंग है मेरी। तो उसमें मैंने कैसे मैं पूरा शुरू किया कि हमारे यहाँ पे जो है पहले कल्चर क्या होता है, फिर ये जो है कंपोजर कल्चर हम क्यों कहते हैं, बिकॉज उसमें सब कल्चर आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली है कि कंपोजर कल्चर के सब कल्चर डिस्कस करना पड़ेंगे कि क्यों हुआ ऐसे। तो मैंने आई स्टार्टेड के पहले उसमें जो 2-3 जो मेन फैक्टर्स हैं, एक जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं और दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर्स है। जोग्राफी मैंने डिस्कस किया कि जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, हिमालय ने हमारे जो कोल्ड विंड्स हैं उनको यहाँ से आने रोक दिया है, तो इसलिए जो है पूरा ऑलमोस्ट होल कंट्री इज मेनली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल है। कुछ पार्ट जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया उसको वार्म टेम्परेट बोल देते हैं हम। तो उसी एरिया में जो है कनक होती है, ईस्ट में और साउथ में कनक नहीं हो पाती बिकॉज दैट इज ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो नो वंडर, तो हम लोग इधर जो है कनक की रोटी खाते हैं और वो नीचे जो है हम जाके वो वहाँ राइस खाया जाता है, तो ये हमारी डाइटरी हैबिट हो गई। तो दिस इज हाउ योर जोग्राफी हैज इन्फ्लुएंस योर दिस वन कल्चर। ऐसे ही आपकी जितने भी कपड़े हैं वो है, अभी जैसे टर्बन है, टर्बन हम नॉर्थ में क्यों पहनते ज़्यादा, सर्दी पड़ती है। ये तो टर्बन इट इज़ नाउ सन में 6, ऐसा नहीं है। जो पुराने हमारे जो होते थे ना, मेरे जो दादे के दोस्त थे पंडित थे, अब देखोगे पुराने उन्होंने सबके टर्बन होती थी। गांव में जितने भी पंडित होते थे, बनिए जो होते जितने होते थे, सबके टर्बन बांधते थे। वो लाला लजपत राय देखा होगा, टर्बन होती उनके पास। तो ये क्लाइमेट की वजह से आ गया। तो ऐसे ही ये जो हम लोग वहाँ पे पंजाब में जो टर्बन पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं, ये कहाँ से आए, कुशान लेके आए थे ये। वो मैंने सारा वो जो हमारे जो ग्रीक्स आए हैं, टर्क्स आए हैं, फिर हुन्स आए हैं, सक्स आए हैं, कुशान आए हैं, उन्होंने कैसे कैसे हमारा इन्फ्लुएंस किया है। फिर आपकी डाइटरी हैबिट्स में जो अलग अलग आपकी जो है वो आई हैं, रेसिपीज आई हैं, कबाब आ गया आपका, बिरयानी आ गई, ये कौन मुगल लेके आए थे ये। तो फिर मॉडर्न जैसे आपका अभी बर्गर आ गया, ये आ गया, वो भी उस टाइम आ गया था बर्गर। बॉम्बे में फर्स्ट जॉइंट खोला था उस टाइम, तो मेरे था मैकडॉनल्ड का खुला था, पर ऑफ कोर्स इतना उस टाइम नहीं था बिकॉज 96-97 में, अभी 95 में ही शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन बेसिकली जो डब्ल्यू बना है। तो उसके पहले इतना वो नहीं था, जब उसके बाद शुरू हुआ सारा ये ऑल योर जैसे मैकडॉनल्ड हो गया, ये हो गया, सब इंडिया मैनेज हो गए हैं, तब आपकी जो है डाइटरी हैबिट पूरी ड्रास्टिक चेंज हो गई है। उस टाइम इतना नहीं होता था। तो फिर भी मैंने लिखा कि ये चीज़ें सब जो है अफेक्ट कर रही है अभी। फिर जो हमारे NRIs हैं, पंजाब से बहुत ज़्यादा जाते थे, उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया हमारे कल्चर को इधर आके। गल्फ से जो है वो केरला को कैसे किया उन्होंने, वो भी मैं उसमें सब लिखा था। फिर मैंने उसमें लिखा जो सर्वे करने के बाद उसमें अंडरलाइन करंट्स हैं हमारे जो विच प्रोवाइड यूनिटी डाइवर्सिटी, कि डिस्पाइट के डाइवर्स हमारे पास यहाँ पे क्लाइमेट है, ये है, पर फिर भी एक पूरा कंट्री को हम बोलते हैं अ ट्रॉपिकल मॉनसून कंट्री। ये क्लाइमेटिक यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर हम लोगों का जो जैसे कल्चर इंटरमिक्सिंग बहुत होती है, उसमें जो सिनेमा की लैंग्वेज है जिसको हिंदुस्तानी बोलते हैं, मिक्स ऑफ उर्दू एंड दिस वन हिंदी और पर्शियन जो है, एक लैंग्वा फ्रैंका बन गया पूरा कंट्री का। अब डायलॉग होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, वो पार्टली उर्दू में होते हैं बट वी लाइक इट। गज़ल जो है, मिर्जा गालिब की गज़ल बहुत पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। तो ये सारा जो है इस तरीके से वो हुआ है। फिर ऐसे ही जैसे सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग जो है किसी को समझ में ना आए तो बॉलीवुड में बहुत हिट होता है। तो ये सारे जो हैं ये अंडरलाइंग फैक्टर है विच प्रोवाइड यूनिटी डाइवर्सिटी। फिर आपका जो स्ट्रक्चर है पॉलिटी का, फेडरल स्ट्रक्चर है, चाहे वो आपका RBI है, इट मेक्स योर व्हाट यू कॉल दैट मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द होल कंट्री। पार्लियामेंट पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाती है। तो ये एक उसको पॉलिटिकल यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कल्चरल यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी, जितने भी ये बनते थे अंडरलाइंग करंट्स, वो सारे मैंने उसको एंड किया। फिर मैंने लिखा कुछ चैलेंजेस हैं इसको कंसेप्ट को, वो क्या क्या चैलेंजेस हैं। कुछ सर्टन जो डिविजन भी जो जैसे पंजाब में थी या वो थी, उधर लिंग्विस्टिक बेसिस भी कुछ प्रॉब्लम होती थी, ये होती थी, वो सारे में डिस्कस किए हैं। हाउएवर फिर हमने कहा कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें हमने वी हैव ट्राई टू गिव अनफ रूल्स, उसमें गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें स्टेट्स को काफ़ी ऑटोनॉमी दे रखी है, बट थोड़ा सा मेन प्रॉब्लम है फिजिकल उस पर है। फिजिकल के उस पर थोड़ा सा अगर और सोर्सेज प्रोवाइड किया जाए तो इट कैन बी अ वेरी हेल्दी सिस्टम। कंप्यूटर कल्चर जो है प्लस पॉलिटिकल जो है फेडरलिज्म जो है बड़ा एक दूसरे को है कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें पूरे फट्टे हैं मैं कहूँगा जो मैं मार के आया हूँ। पर मुझे बताओ इस फट्टे में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगे जो रैशनल है या गलत है? पूरा ऑथेंटिक वहीं बैठ के डेवलप किया है। और ये सारा कहाँ गया है कि अलग अलग जो एंथ्रो में पड़े थे ना फटे फंडे फंडामेंटल फंडे पड़े थे, वो सबको इकट्ठा कर दिया मैंने वहाँ बस।
तो बेसिकली अगर वो मेरे से पढ़ते आप 42 पेज का, आपको लगेगा कि आपने पेपर 2 आंसर को पूरा कर दिया, वहाँ पे लिख दिया, क्योंकि उसमें पूरा लिख दिया, ट्राइबल का भी लिख दिया मैंने, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, ये है सारा कुछ, 4 जो हमारी लैंग्वेज मेन है, एस्टॉइड्स है, वो है, आर्यंस हैं, ड्राइवर्स हैं, ये सारी मंगलोर जो है, ट्राइबल्स की अलग अलग हैं, उनके फेशियल फीचर्स हैं, वो भी सब इसमें डाल दिए उसमें मैंने, ऐसे में है तो डाइवर्सिटी है ना वो भी। फिर आपकी सॉइल अलग अलग है, अलग अलग सॉइल से आपकी अलग अलग तरह की डाइटरी हैबिट बन गई हैं। मिलेट जहाँ पे वो रेड में उसमें होती हैं, ट्यूबर क्रॉप्स आपकी रेड सॉइल्स पे होती हैं मैक्सिमम। कॉफ़ी, साउथ में कॉफ़ी क्यों बोलते हैं, साउथ में कॉफ़ी होती है, नॉर्थ में वो होती टी होती थी, तो नॉर्थ वाले सारे टी पे पड़ गए। तो ये सारे जो है इवन स्मॉल थिंग्स आई ट्राई टू मेंशन इन दैट, कि कुछ लोग मिलेट खा रहे हैं, कुछ वीट खा रहे हैं, कुछ राइस खा रहे हैं। तो ये सारा करने के बाद मैंने इसको किया। सो मेरा आइडिया यही है, जब भी मैं कहीं भी मैं कहीं जगह जाता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, पर सर ने आज मिल गया, हम थैंकफुल टू सर कि आई गॉट दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू हैव कम टू वैज यू विल बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि आजकल अच्छा इंस्टीट्यूट जिसने चूज कर लिया, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा, जो आपकी चॉइस जो है ना, उससे पता लगता है कि आप कितने वो हैं, बल्कि वर्टिकल से वाइज कह सकते हो आप। क्योंकि आजकल तो इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, ये जानना यार कौन से में मुझे जाना चाहिए, इट्स सेल्फ इज है, ये आपका कंपटीशन है। सो यही चीज़ जो है इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, एंथ्रोपोलॉजी आल्सो, अब जनरल स्टडी का भी ऐसा ही है। अभी मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, हमारे पास जनरल स्टडी में क्वेश्चन आया था कि उस टाइम प्रेजेंट की इलेक्शन हुई, कि प्रेजेंट इलेक्शन में जैसे कि डिस्कस द मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेजेंट क्रिटिकली। अभी लोगों ने वो मोड लिख के आ गए, और इसमें क्रिटिसिज्म क्या है भाई, ये तो जो लिखा हो कंसेप्ट ठीक है। तो मैंने कहा यार आपको लगता है कि हमारे प्रेजेंट इलेक्शन सब कुछ ठीक है? तो उन्होंने कहा कैसे भाई? तो मैं लिख के आया था वहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 2 पॉइंट लिखे वहाँ पे। रीजन क्या था कि हम लोग जो है, जैसे वैद में हमें ये पता था कि आपने जो है, हम डी बसु पढ़ते थे, डी बसु ने चलते चलते कहीं पे जिक्र किया है चीज़ों का। लक्ष्मी उसमें जो आप पढ़ते हैं आजकल, वो उसमें नहीं है, ये अभी भी नहीं है। उसमें क्या था कि व्हेन से डिस्कस दी मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्रिटिकली, 2 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज में कोई वैकेंसी है तो उसके बावजूद भी आपकी जो है इलेक्शन विल गो हेड, रिस्पेक्टिव ऑफ कितनी वैकेंसी भी हो आपकी। अब इमेजिन कीजिए, थ्योरेटिकल पॉसिबल भी है, प्रैक्टिकली भी हुआ है। जब इंदिरा गांधी ने इतने स्टेट्स में जो है प्रेजेंट लगा दिया था, इतने स्टेट्स की जो असेंबली डिसॉल्व कर दी है, तो वहाँ के एमएलए के इलेक्टोरल कॉलेज में है ही नहीं है। तो अब ऐसा काम करके कभी भी अपने प्रेजेंट को डालोगे, है ना? नंबर 1। नंबर 2 था कि भी आप देखिए, चंडीगढ़ जैसे है, चंडीगढ़ की अपनी लेजिस्लेचर रही है, यूनियन टेरिटरी है, उनका जो लोकसभा मेंबर है वो तो वोट डालता है, एंड दे डोंट हैव एनी राज्यसभा मेंबर। भाई उन्होंने क्या कसूर कर दिया यार? लिख दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने, एक स्टेट के तो लोकसभा मेंबर भी वोट डाल रहे हैं, राज्यसभा मेंबर भी डाल रहे हैं, बट सम पीपल आर बीइंग रिप्रेजेंटेड ओनली बाय लोकसभा मेंबर ओनली, दैट्स ऑल। पॉइंट तो है ना? ओनली दिल्ली, पांडिचेरी में भी राज्यसभा मेंबर नहीं है, दिल्ली में है। अभी JNK बनाया वो उनको तो है, बट बाकी जो यूटीज हैं दे है मेंबर, लक्षद्वीप का भी है, अंडमान निकोबार का भी एक लोकसभा मेंबर है, लेकिन राज्यसभा कोई नहीं है। तो जब इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट की, तो उनके सिर्फ एक लोकसभा डालता है, राज्यसभा को कोई है ही नहीं रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, आप कह सकते हो कि यूनियन टेरिटरी है, उसके इंटरेस्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, बट यहाँ तो बात डेमोक्रेसी की हो रही है ना, कि हाउ यू आर बीइंग रिप्रेजेंटेड। मैं आज चंडीगढ़ छोड़ के मैं पंजाब में चला जाता हूँ, तो मेरे लोकसभा का जो MP डाल रहा है तो राज्यसभा भी डाल रहा है। अब मैं चंडीगढ़ में आया तो मेरा सिर्फ एक लोकसभा डाल रहा है। तो ये मैं 2 पॉइंट लिखे आया था। सो ये चीज़ें आप तभी कर सकते हो अगर आप जो है स्टैंडर्ड सोर्सेज के ऊपर रिलाई करोगे। गाइड्स का मतलब क्या होता है? गाइड बुक लिखने का मतलब ये होता है कि वो आपका एक तो स्पेसिफिक आपके इस चीज़ को ही वो कैटर कर रहा है। जो स्टैंडर्ड बुक है उसको आपके UPSC को लेना नहीं है,
एम्बर को आपके यूपीएससी को लेना नहीं है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उसने एंथ्रोपोलॉजी को रिसर्च करना है, उसके लेटेस्ट रिसर्च क्या है एंथ्रोपोलॉजी में। उसने ये नहीं देखना कि आपको मेरे 200 वर्ड देने 300 वर्ड देने हैं, उसने देखना कि मैं इशू डिस्कस करना है, चाहे मेरे 500 वर्ड लग जाए। अगर इशू मेरा 200 वर्ड में डिस्कस हो रहा है मैं 200 में छोड़ दूंगा। और यहाँ पे जो है आपके जितने भी नोट लिखे जा रहे हैं, ये जो है जी ये तो मैक्सिमम 10 वर्ड का आ सकता है, तो इसके तो 150 वर्ड बहुत है, ज़्यादा है। ये जो है ये मैक्सिमम जो है इतने वर्ड का, इसके हमने 400 वर्ड लिखने हैं जी। वैसे ही नोट आपके बने हुए हैं कि प्लॉजिबिलिटी है कि ये टॉपिक जो है मैक्सिमम 10 वर्ड का ही आएगा, मतलब 10 नंबर का ही आएगा, और ये 15 का आएगा। तो उस तरीके से आपके देखोगे, आप जितने भी अब नोट बन रहे हैं मार्केट में देख लीजिए, वैसे ही बनाया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल जैसे एंथ्रोपोलॉजी का पहले वो है डेफिनेशन क्या है, बहुत कम लोगों ने लिखा हुआ है। इनकी जो रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन्स, हर नोट्स में बहुत इन्होंने लिखा हुआ है कि वो लिख रहे हैं वो कि ये 10 मार्क्स का ही आएगा तो। सो ऐसा नहीं है, डोंट लिमिट योर सेल्फ दिस वन, 200-400 वर्ड जितने भी आप कर सकते हो, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या उसका रिलेशन है आपस में। कि जब आपको वो अंडरस्टैंडिंग है, फिर वो आप यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल। आप उसको जो है 150 वर्ड में लिख लोगे, आप उसको 400 वर्ड में भी लिख लोगे इफ़ नीड बी। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर ज़्यादा पता होगा आपको, तो आपको कंडेंस करने में मुश्किल हो जाते हो। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कम पता है तो ज़्यादा आप स्पेंड नहीं कर पाते हो। सो पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरा क्या मैं देख रहा था अभी जितनी भी जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका टॉपिक है अडेप्टिव रेडिएशन है, उन्होंने बहुत सारी और एग्जांपल दे रखी हैं। आपके अडेप्टिव रेडिएशन में ह्यूमन एवोल्यूशन में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जो एस्ट्रोलोपैथी का उसका सारा वो अडेप्टिव रेडिएशन ही है। अलग अलग स्पीसी वो हैं, अलग अलग, जैसे आपका रोबर्ट्स है वो क्या उसने उसका डाइट पैटर्न अलग था, तो अलग तरीके से इवॉल्व हुआ है वो, तो वो अडेप्टिव रेडिएशन ही तो है। तो उसके बाद आपके जितने भी एप या मंकीज, ओल्ड मार्बल मंकीज, ये भी अडेप्टिव रेडिएशन ही है। तो आप वो अच्छी एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि हर उसमें देखा वही देखा है। डार्विन की जो फिंचेस की एग्जांपल दे रखी है अडेप्टिव रेडिएशन में, उसको दे दो, लेकिन ये दोगे तो ज़्यादा वो है मेरे ख्याल, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी वैसे ही ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए डील करती है। नहीं, सही बात है, बात तो कुछ भी नहीं है ठीक है ना। और एक जो है, जैसे हम लोग का कई बार बोलते हैं, सर वैसे आपको बता दिया होगा ये क्वेश्चन, हमें भी पूछते थे कि भाई ऐसे बताइए कि अब ये एवोल्यूशन हुई है आजकल, क्या आपको लगता है कि इनफैक्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि अभी जो है मैन की जो एवोल्यूशन क्यों रुक गई है, अभी नहीं हो रही, अभी होमो सैपियंस में से कोई और स्पीशीज क्यों नहीं बन रहा। ओके, हाँ ठीक है। एक तो माइक्रोवेव चल रही है, जैसे आपका देखा ना वो विजडम टीथ का जो लास्ट है आपका, वो मिसरेप्ट होने शुरू हो गए हैं, भाई उसका यूज़ कम हो गया, तो उसको लगता है कि आपको कोई सिलेक्टिव एडवांटेज नहीं मिल रहा उससे, तो वो आपके ऑलमोस्ट नेक्स्ट जनरेशन में आ ही नहीं रहे, वो निकल नहीं रहे। एक तो ये हो गया है। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपने ये देखा जब आप एवोल्यूशन पढ़ते हो, कब जावा जंप किया एवोल्यूशन ने, कब किया? हाँ, जब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वो हुआ है। अभी क्या हुआ है, अभी कोई ड्रास्टिक इतना पंगा लिया नहीं है ह्यूमन ने कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कुछ हुआ है। अभी कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, तो देखो क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ये जो मॉडर्न मैन है इसने अपना कल्चर इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है, टेक्नोलॉजी। पहले बेचारे के नेचुरल को ठंड लगती थी, उसको आग याद करनी पड़ी, आजाद से सेके हुआ करता था। आपने एसी लगा लिया, अभी तो गर्मी है तो भी एसी है, सर्दी है तो भी एसी है, तो आपकी एवोल्यूशन कहाँ होगी? सैन लोग अभी भी हमारे जो वो है ना, जैसे मेरे दादा दादी वो बोलते हैं कि भाई ऐसा है बाहर धूप में निकला करो, सारा दिन एसी लगा के मत बैठा करो, बिकॉज आपकी बॉडी जो है एक्लेमेटाइज नहीं हो पाएगी, गर्म सर्द हो जाओगे आप एकदम। एसी बाहर निकले गर्मी में जाते हो, आदत नहीं पड़ेगी। कम लगाया करो एसी को, पूरे दिन लगा रखते हो। लगाना तो कम पे लगाओ, 25-26 लगाओ उसमें, नॉट ये 18 में लगाओ। सो हमने अपने टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे हमारे जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, अभी सारा में भी पूरी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिकॉज देखन सूडान में लाइक स्मॉल कंट्री है, मैं वहाँ पे गया था एक बारी, दिस इज कॉल्ड दिस वन जिबूती।
ये इट इज़ एट द हेड ऑफ बावले मंडप के हेड पे है, बड़ा स्ट्रेटजिक उसका है। चाइना वहाँ पे काफ़ी वो कर रहा है, अपना नेवल बेस बना रहा है, इंडिया भी कोच कर रहा है उनको वो करने के लिए। वहाँ बड़ी गर्मी होती है, सूडान में बड़ी गर्मी होती है, लेकिन वहाँ देखो आप हर किसी ने वहाँ पे ऐसी लगा रखे हैं, 50% टेम्परेचर आता है वहाँ पे। और पहले वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं थी, अभी वहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ी है, बहुत बढ़ गई है, बिकॉज दे आर एबल टू कंट्रोल द क्लाइमेट। सो जब ये आपकी टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाएगी, आपकी एक ड्रास्टिक चेंज होंगी उसमें, फिर शायद हो सकता है आप इवॉल्व हो, बिकॉज ऑलरेडी देयर सर्टन बुक्स विच आर टॉकिंग ऑफ के फ्यूचर का जो है ह्यूमन कैसे होगा, कि जैसे आप पूरा दिन जो है कंप्यूटर बैठे रहते हो, आपकी आईज कैसे हो जाएंगी, वो कहते हैं ऐसे हो जाएगी, बाहर निकलेंगी इसे, बिकॉज दिस इज हाउ एवोल्यूशन टेक प्लेस। क्योंकि आप कर ही रहे, बस आई को यूज़ कर रहे हैं, बस कंप्यूटर पे याद कर रहे हैं, बस दैट्स ऑल। ना आपकी लेग्स वो हो रही हैं, वे भी डिसीज हो रही हैं बाकी हो रही हैं। सो ये कुछ डायमेंशन जो हम लोग मिल के डिस्कस करते थे, उस टाइम ये चीज़ें सर ने बताई थी हमें इनफैक्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब अच्छा, सब्सिडी के बारे में बोल रहे हो आप? ओके, मतलब क्या आपकी क्या मतलब नेगेटिव पॉइंट्स, मतलब क्या आपको मतलब क्वेरीज क्या है एग्जैक्टली? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी बाकी के बारे में नहीं पता होता आपको। देखो ऐसा है बेटा, मैं दो चीज़ें कहूँगा। इनफैक्ट जब आप फील्ड में जाते हो ना, अभी जैसे हमारे उसमें भी IRS में जैसे लोग, एक ये डिस्कशन बन जाती है कि कौन सी चीज़ बेटर है, IAS बेटर है, IPS बेटर है, IAS बेटर है। देखो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ा अलूप सा वो है, मैं ज़्यादा सोशलाइजेशन लाइक नहीं करता हूँ, पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 6 बजे मैं अपना ऑफिस से फ्री हूँ, अपने घर पे आऊँ तो काम करूँ पढ़ने का, ठीक है नहीं। IAS में ऐसा नहीं होता, IAS में 24 आवर्स आपके है, एनी टाइम आपको कोई भी कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा। जो आप डिप्टी कमिश्नर हो, SDM है, आपको स्टेशनरी भी मिलती नहीं है, कहीं जाना है आपको घूमने के लिए नहीं जा सकते आप, ये फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम होती है। तो इंटरमीडिएट वाले में जैसे लेट से DIG है, उसको कोई ज़्यादा वो नहीं होती, उसको लॉ कर देते हैं, लेकिन SSP को नहीं करते। और दूसरा पॉलिटिकल इंटरव्यू बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसको वो आपको जो है ना मैनेज करना आना चाहिए। सो थोड़े जो लोग सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पे आपको थिक स्किन बनना पड़ता है। सेंसिटिव लोग होते हैं वो, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, वो आपसे कई बार बदतमीजी से भी पेश आते हैं। दे आर नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड और वेरी काइंड ऑफ दिस वन इन देयर बिहेवियर। कुछ पॉलिटिशियन अच्छे हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, और वैसे भी उनका ऐसे बैकग्राउंड ऐसे होता है, तो हो सकता है कि आपसे बड़ा ओए ये ऐसे तू क्या कर रही है, ऐसे बात करेंगे। तो उसमें कई बारी, क्योंकि मैं जानता हूँ एग्जाम्पल, तभी बता रहा हूँ आपको, तो उस तरीके से अगर आप सेंसिटिव हो तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर ग्रेजुअली एवोल्यूशन होती है वहाँ पे भी ठीक है ना ठीक है। तो नॉर्मली 90% लोग जो है इवॉल्व हो जाते हैं, 10% की प्रॉब्लम रहती है। फिर जैसे हमारे कुछ बैच में 10% है, वो क्या करते हैं, भी स्टेट में तो काम करना बड़ा मुश्किल है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं, 6 महीने के बाद ये कर ले, देन दे ट्राई टू कम टू दिल्ली, IB में आ गए, CBI में आ गए। जैसे एक मेरा फ्रेंड है, वो 20 साल से IB में ही है, पंजाब कैडर का है, पंजाब को बिलोंग करता है, मतलब मैं नहीं आ करता हूँ, कर सकता हूँ, बिकॉज बहुत सेंसिटिव बंदा है, लिटरेरी पढ़ने लिखने का शौक है। मतलब यहाँ पे क्या कोई भी आके गाड़ी दे देता है। एक आजमादे पास जो MLA है, उसको आगे बोल रहा है कि मैं तो देख लूँगा, व्हेन ही वाज SSP बठिंडा, मैं नहीं रहता हूँ यहाँ पे। बस वो जस्ट 7 साल उसने किए हैं, आफ्टर दैट ही केम टू दिल्ली IB में, ही वॉज नॉट। बट एक और था, वो बहुत सेंसिटिव था, वो इतना इवॉल्व हो गया, बोलता कि नहीं अभी तो कोई बात ही नहीं है, ही इज एन IPS आल्सो, पंजाब में ही है। ये तो देखो पुलिस का पता ही है, लैंड ऑर्डर इन्फोर्स करना है अपने, और IAS में क्या है कि डेवलपमेंट मेन है, लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, काम में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। IRS में जो है डाइवर्सिटी नहीं है काम में, वही काम कर रहे हो आप थ्रू आउट द कैरियर, वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। बट इशू ये है, जैसे हमारा एक फ्रेंड है, वो बोलता वो IAS में गया था सोच के कि मैं लोगों का बहुत विकास करूँगा, अभी वो उसने जस्ट 2 साल पहले क्विट कर दी, अभी वो कोई NGO चला रहा है।
तो मैंने कहा भाई क्यों भाई? मैंने कहा हरजिंदर जी इस सिस्टम में कुछ नहीं किया उसका। बिकॉज ये बात सही भी है, सही माने में मैं तो इतना ही कहूँगा, देखो मेरा अपना जो प्रिंसिपल है, मैं अपने ऑफिस में काम करता हूँ, मैंने अपने उसको कह रखा कि देखो ऐसा है भाई, आप सब अडल्ट हैं, मैं आपको करप्शन पे सरमन दूँ कि करप्शन गलत है, इसमें कोई कहने की बात नहीं, आप अडल्ट है, सबको पता है कि गलत है। कल को फंसोगे आप तो मैं आपकी सपोर्ट करने वाला नहीं है, यू आर ऑन योर ओन। अच्छा काम करने के लिए कोई आपको वो करता है, बोनाफाइड आपकी मिस्टेक है, आई विल टेक स्टैंड। मैंने लिया भी है, उसमें मैं खुद ट्रैवल में आया हूँ, बट नो, व्हेन आई नो कि ही बोनाफाइडली अच्छा काम कर रहा था वो, तो आई टुक स्टैंड। तो मेरा अपना ये होता है कि भाई मैं अपना काम ठीक रखूँ, मैं दूसरों को जो आई कांट हैव कंट्रोल ओवर अदर्स, उनके वैल्यू सिस्टम को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपने वैल्यू सिस्टम कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं खुद अपने को रखता हूँ। उसके चलते आई एम रियली वेरी हैप्पी इन IRS। इनफैक्ट माई वाइफ इज IRS इन कस्टम्स एंड एक्साइज, एंड उनका भी ऐसा ही है, पढ़ने लिखने का शौक है, तो सी इज़ वेरी हैप्पी। इनफैक्ट नाउ सी इज़ ऑन डेपुटेशन विद पंजाब गवर्नमेंट, तो वहाँ देख के उनको जो IAS का जिस काम का जैसे स्टाइल है या वो है, जैसे उनका प्रोफाइल है, तो उसको लगता है कि आई एम क्वाइट गुड इन IRS। अभी वो वहाँ पे 3 साल से है, तो उसको लगता है कि यहाँ तो कोई टाइम ही नहीं है। सीम्स हैपनिंग टू हर आल्सो। उसको शुरू में कम्युनिटी मिल गया, एडजस्ट करने में बड़ा मुश्किल आया था कि कोई भी मिल गया, आपको मीटिंग रात को 9 बजे बुला लेते हैं, लेकिन हमारे IRS में ऐसे होता नहीं है। हमारे नॉर्मल सैटरडे संडे को कोई नहीं पूछता आपको, फ़ोन भी नहीं आएगा आपको, और सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 6 बजे बाद कोई नहीं पूछेगा आपको, अनलेस आप कोई ऐसी ड्यूटी पे हो जस्ट 5, नॉट इवन 5%, 1 और 2% पीपल्स। अदरवाइज लाइफ बड़ी कंफर्टेबल रहती है। कभी दिल आपने चाहो, आपके जो साल की छुट्टी बनती है 15 दिन की या महीने की, कभी ले लो आप, कोई नो प्रॉब्लम, मिल जाती है। एक्सेप्ट इन मार्च, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, उस टाइम थोड़ा होता है, अदरवाइज जनवरी तक कोई इशू नहीं है, जब मर्जी कभी जनवरी तक छुट्टी लो, कैसे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीसफुल रहता है, कोई ज़्यादा मारामारी नहीं, कुछ नहीं है। एक आप अपने काम को प्लान कर सकते हो कि आज आपने ये काम करना, जाके आप कर सकते हो, लेकिन IAS में प्लान नहीं होती। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं बताते हैं कि यार हम सोच कर सकते हैं कि ये 2-3 चीज़ काम करने हैं, होते ही नहीं है, क्योंकि हमेशा ही क्राइसिस मैनेजमेंट होता है वहाँ पे। मंत्री का ये आ गया कि नहीं आज ये करो जी, आज वहाँ पे ये जी 3 दिन के बाद वहाँ पे जो है उसका वो जो क्या माइक्रो क्लिनिक का उद्घाटन करना है, 2 दिन में इसको सेटअप करो, तो वो जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता कभी भी, बिकॉज उनका वर्क नेचर ऐसा है। तो बाकी आपका एप्टीट्यूड है, अगर आप ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस झेल सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, तो डेफिनेटली एक जो टू बी वेरी फ्रैंक, जो सोशल रिकॉग्नाइजेशन है सोसाइटी में, वो IPS IAS की ज़्यादा है, IRS की थोड़ी सी पीछे रह के है। और IRS की जो थोड़ी बुक्कत है वो मेनली जो है हाई जो डेंट्री सोसाइटी है उसमें है, आम लोगों को, फार्मर्स को, उसको कुछ नहीं लेना नहीं है। जैसे मेरे जो मैक्सिमम रिलेटिव हैं वो फार्मर्स हैं, फार्मर को बिलोंग करते हैं, तो उनको मेरे से कोई लेना नहीं है। लेकिन जो मेरा एक कजन है वो एक DSP है, वो सारे उसके पीछे रहते हैं, बिकॉज वो DSP है, उसको कोई ना कोई काम पड़ता रहेगा। तो ये है, बट आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि उसके वो भी वही रहता है पटियाला में। बोला कि मैं उता गया, क्या हो गया? कहते गाँव से रोज 2-4 लोग आ जाते हैं, सुबह 6 बजे आके कर बेल मार देते हैं, मुझे कोई मिलने आता नहीं है, तो आया वेरी वेरी दिस वन। ठीक है ना, तो ऐसा है। ठीक है बेटा, हाँ जी। अच्छा, कंसेंसी, ओके। देखो, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, थोड़े से कभी तो जो है ना अप एंड डाउन आते ही हैं, ठीक है ना। तो मेरी एक, अब मैं बोलता हूँ आपको, मेरी एक मजबूरी थी इनफैक्ट कि इस जॉब में आने से पहले आई वॉज इन मर्चेंट नेवी, 3 साल में लगाए हुए थे वहाँ पे, तो मुझे वो जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी। पंजाब में हालांकि लोग उसको बहुत बोलते थे कि बहुत अच्छी, पैसे बहुत मिलते हैं, तो आई वॉज नॉट लाइकिंग दैट आर ऑल। एक तो आप टोटली एट CO आइसोलेट रहते हो, ठीक है, हालांकि साल में आपको 4 महीने छुट्टी मिलती थी, 8 महीने वहाँ जाना पड़ता था, तो मुझे समहाउ उसका कल्चर पसंद है वहाँ का, जैसे वहाँ पे जो था। तो एक तो मुझे ये था कि वहाँ से मुझे निकलना जो मर्जी हो जाए, तो एक तो ये मोटिव रहती थी हमेशा कि यार अदरवाइज मैं नहीं करा तो मैं वहाँ जाके करना पड़ेगा दोबारा फिर। ठीक है ना, जैसे कि मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड, आई वॉन्ट नेम हिम, वो 96 बैच में ना, ही वॉज इन IPS JNK कैडर। तो बोला कि
अभी मैंने वहाँ से निकलना ही है। तो मैंने कहा अभी कैसे निकलेगा? कहता है 2 कारण है, पहले तो पुल से निकलना है और दूसरा JNK गेट से निकलना है। तो जब इतने जो 2 वो आपके पीछे खड़े हुए हैं जो तलवार की तरह लटके हुए हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा। 2099 में ही केम IAS, नाउ ही इन पंजाब कैडर। सो एक तो ये है। दूसरा, नॉर्मल रूटीन में डेफिनेटली ये नहीं है कि मेरे जो था उसके बाद भी आपके कुछ ना कुछ डाउन अप्स डाउन आते हैं, ठीक है ना। देखो एक तो ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है ना, आई डोंट नो कि आप लोग कितना वो करते हैं, वैसे जैसे हम लोग क्या करते थे, आजकल जो मुझे पता चला है ज़्यादा रिवाज है नहीं है कि आपस में जो है ना डिस्कशन करना, वो करना। हमारे उधर क्या होता था, जैसे पंजाब चंडीगढ़ में ना, पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या होता था, हॉस्टल में ना, मतलब 20-20 लोग बैठे हुए हैं, रात को टॉपिक पकड़ लिया, जैसे JNU कल्चर होता है वो वाला, तो उसकी पूरी खाल दे देते थे कि जब आप लग रहा है कि डाउन हो रहे हैं तो वहाँ चला जाओ ग्रुप में है। वो कोई ना कोई इशू पकड़े बैठे होते, कोई ना टॉपिक करंट अफेयर का, चाहे वो सोशल इशू था, पोलिटिकल इशू था, या कोई इंटरनल इशू था, वो होता था। तो बस वो पूरी रात, मतलब कि रात शाम को, मतलब कि रात को 9 बजे स्टार्ट होती थी डिस्कशन, करते करते सुबह के 3-4 बज जाते थे। तो नॉर्मली ये मोमेंट्री होते हैं, जो आपके डाउन वाले मोमेंट होते हैं, मोमेंट्री होते हैं। ये नहीं है कि ये आपके बहुत 2-4 दिन 5 दिन चलेंगे, मोमेंट्री होता है। 1 दिन हो गया या 2-4 घंटे हो गया, 5 घंटे हो गया, आपको लगता है यार क्या अपनी मैं कर रहा हूँ, होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, तो मोमेंट से विड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। आप कोई फ्रेंड के साथ बैठ जाइए, गपशप कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए। अगर आप कोई म्यूजिक सुनते हो, कुछ कर लेते, जैसे मुझे गज़ल का बहुत शौक था, मैं लिखता भी था और मैं सुनता भी था, तो मैं या गज़ल लिख लेता था फिर, या सुन लेता था कुछ। तो ये एक मेरा वो था बड़ा फेमस पास टाइम। और नहीं तो एक्सरसाइज कर लो आप। मुझे एक्सरसाइज का बहुत शौक था, तो वो मैं करता था काफ़ी, कि आप वॉक पे चले गए, तो ये कर सकते हो आप। तो नॉर्मली आई विल से कि जब आपका थोड़ा सा डाउन लगे, आपको आपकी जो कोई हॉबी है उसको परस्यू करो, पेंटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, और नहीं तो कुछ जर्नल बुक्स पढ़ लो, और कुछ कोई नॉवल पढ़ लो, कुछ कर लो, कुछ भी कर लो। यही है, और तो मुझे कुछ नहीं है। या आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, उससे कर लो। घर में कोई अच्छा आपका मेंबर है जिसका आप कन्फाइन कर पाते हो, उससे बात कर लो, क्योंकि इसमें आउटलेट ही होता है और तो कुछ नहीं होता। वो कर लिया आपने तो हो जाएगा। बाकी बी पॉजिटिव, कि दूसरा अगर आपने ठान लिया अभी मैं जाना ही सिविल्स में है, IAS करनी है, तो बात खत्म। फिर तो योर ओन चॉइस। मुझे लगता नहीं आप पे किसी ने थोपी होगी, खुद ही आपने डिसाइड किया है, तो फिर तो बस छोड़ो, फिर क्या सोचना है कि क्या बोलते हैं उसको, कभी ना बल्कि अभी नहीं तो अगले साल हो ही जाएगा जब लगे हुए तो, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम रख के चलो, कहीं जरूरी नहीं है कि फर्स्ट उसमें हो जाता है, ठीक है ना, बिकॉज इट्स हाईली कम्पिटेटिव एग्जाम। तो उतना करके चलोगे तो आपकी टेंशन भी कम होगी। आपको अगर लगेगा नहीं मैं इस साल ही करना है, जो लोगों का ये होता है ना, वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, डोंट थिंक। और मैंने अपना खुद भी मैंने ऐसे ही किया है, मतलब कि आई नेवर पुट लाइक इन माई ऑफिस आल्सो, मैं किसी पे कोई स्ट्रेस डालता नहीं हूँ। मुझे कोई कहता है कि मैं किसी को कोई काम देता हूँ, बोले कि सर मैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं उसको बोलता हूँ कि अच्छा आप कब कर पाओगे, वो मैं कल कर पाऊँगा। मैं ठीक है सर, अब मैं आपको बोल देता हूँ कि ठीक है आप ऐसे करो, कल नहीं आप मुझे 2 दिन के बाद दे देना, तो वो उसके ठीक हो जाता है। सो ये चीज़ आपके लिए है, बिकॉज अल्टीमेटली इज ह्यूमन साइकोलॉजी ओनली। तो उस मूवमेंट से बाहर आने के लिए आपको ना कोई ऐसी चीज रास्ता ढूंढ लो, आपको योर बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। और कुछ थैंक यू सर, सर थैंक यू सर, 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 थैंक यू। One thing about him is that if you want to invite him, you can invite also. अभी तो भोपाल में रहेंगे तो मैं वहाँ होशंगाबाद के पास ही रहूँगा, तो मुलाकात तो होगी। But the way he is doing wonderful job. तो the way he told you, मैं कहता हूँ कि once an anthropologist, always an anthropologist, one and two anthropology you cannot come out. He is really living that right. ठीक है ना? If you want to continue, पर मुझे लगता है कि आपको अगर वीडियो सुननी है तो आपको 10% थोड़ा स्लो करके सुननी पड़ेगी। हाँ थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। जैसे कहा भी था कि जरा धीरे बोलिएगा, मैं वो फ्लो में जो है ठीक है। सर वो वाल हो गया सर। So
Thank you. So nice of you. Thank you. you, all the And best. benefit whatever you can. All of you come here. Huh? God bless you all.